Hello guys, welcome back to my channel. So those who don't know, hey, my name is Afshin Qureshi and I'm a student who's currently pursuing bachelor's degree in forensic sciences. So today's video is all about previous year questions of BTech MTech of NFIT 2023 because मेरे को 2024 का पेपर नहीं मिल पाया, इसलिए मैं सिर्फ 2023 के कवर कर रही हूँ अभी BTech MTech के MPYQs. So ये वाले MCQs they can be referred by BSc MSc Forensic Science student, BSc Criminology and Forensic Science student and even MSc वाले भी कर सकते हैं, MSc Forensic Science वाले भी refer कर सकते हैं because syllabus is somewhat same. So yeah, you can refer to this. So as you can see on the screen, NFIT 2023 misses physics, like specifically physics, as we are only right now taking physics part. So specifically physics में से NFIT 2023 में 27 questions थे in BTech MTech paper. अभी now as you can see on the screen, अभी हुआ क्या था NFIT 2023 में कि like BSc MSc Forensic Sciences जो 5 year integrated का कोर्स है वो वाला पेपर और BTech MTech के पेपर में जब तुम देखोगे उसमें से तुम स्क्रीन पे जितने भी देख रहे हो क्वेश्चन वो सारे सेम थे. मतलब BSc MSc की फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड का तुम क्वेश्चन पेपर NFIT 2023 उठाओगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और NFIT 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 जो BSc MSc फॉरेंसिक साइंसेस का था वही सारे क्वेश्चन BTech MTech NFIT 2023 में भी थे. इतने सारे क्वेश्चंस तो वही सेम थे, तो वो मैंने इसमें कवर नहीं किया. मैंने ऑलरेडी ये वाले BSc MSc की फॉरेंसिक साइंस वाले के PYQs ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट पहले जाके वो देख के आओ बिकॉज वो सारे MCQs सेम है. मतलब तुम यहाँ नोट डाउन कर लो इतने MCQs BTech MTech के सेम थे. तो पहले तुम वो वीडियो देख के आओ, फिर जितने और थे और बाकी है वो यहाँ पे आगे मैंने कवर किए. सो यहाँ पहले वो देख लो वीडियो, उसके बाद यहाँ पे आके दूसरे MCQs जो इसमें पूछे थे वो देख लेना. ओके, सो मूविंग फॉर फर्स्ट MCQ. Seismic waves like earthquake waves can be either P waves or S waves. P waves मतलब primary waves and S waves मतलब secondary waves और P waves मतलब longitudinal waves and S waves मतलब transverse waves. Choose the correct wave type and can they be refracted. अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? longitudinal yes, transverse no, longitudinal no and transverse yes. तो जैसे मैंने बोला कि P is longitudinal and S wave is transverse. तो correct option is option number 1. Why? Because earthquake waves are always longitudinal, like primary waves. They are called as earthquake waves, and yes, they can travel through solid, liquid, and gaseous medium. Also they can be refracted also. तो इसके ही लाइक ये की प्रॉपर्टी के बेसिस पे साइंटिस्ट दूसरी सारी स्टडीज़ भी करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में और ये सारे के बारे में बिकॉज दे कैन बी रिफ्रैक्टेड. सो या ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. मतलब P waves का यही है कि मतलब their particle motion is in the same direction as the wave propagation. Okay, next. The frequency of sound wave is 200 Hz and its wavelength is 2 meter. What is the speed of sound wave? कितना easy है. Speed is what? Frequency into wavelength. Already दिया हुआ है 200 into 2 कर लो, क्या होगा? 400 मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. यहीं आ गया भाई, कितना ईजी है. ओके, नेक्स्ट. द एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर्मूला इज व्हाट? तो जिसको नहीं पता यहाँ पे देखो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इज permitted in a vacuum for a given electric displacement field which is D. So that is D equals to एप्सिलॉन 0 इंटू E. अब हमको पूछा क्या है? एप्सिलॉन 0. सो दैट इज एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू
D by E. So option number 2 is the correct option for this MCQ. Moving to the next one. The unit of relative permittivity is what? अभी तुम ये बताओ मेरे को कि relative permittivity क्या है. तो relative permittivity is the ratio of permittivity of a material and divided by permittivity of a free space. तो अब उसकी जो यूनिट्स है, दोनों के यूनिट्स क्या है, F by M, दोनों के यूनिट सेम, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशन लेस, इसलिए उसका कोई भी यूनिट नहीं है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 नन इज करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. Moving to the next MCQ. In an electric kettle, water boils for 10 minutes. उन्होंने बता दिया कि भाई ये केटल में 10 मिनट में पानी उबल जाता है, पर हमको बॉईल करना है 15 मिनट के अंदर. मतलब टाइम अब थोड़ा धीरे होना चाहिए कि 10 मिनट में नहीं, 15 मिनट में इनको गर्म करना है यूजिंग द सेम सप्लाई मीन्स. अब ये ऑप्शंस दिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम क्या कर सकते हो कि उसका मतलब 15 मिनट बाद बॉईल हो, थोड़ा कम टाइम लाइक ज़्यादा टाइम में हो, तो तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे. तो अभी हमको मालूम है कि जो लाइक हम पावर की फॉर्मूला लेते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू V² बाय R. V क्या है हमारा, वोल्टेज है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मतलब हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस. बिकॉज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक केटल काम कैसे करती है, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है हीट में विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एलिमेंट. ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज R एंड वोल्टेज जो मेन सप्लाई मेन होगा वो, तो दैट इज P इक्वल्स टू V² बाय R, जैसे तुम देख भी सकते हो स्क्रीन पे. ठीक है, अब हमको पानी थोड़ा धीरे बॉईल करना है, 15 मिनट में बॉईल, वो 10 मिनट में कर देती थी. तो अब हमको कम पावर चाहिए, तो इसलिए हमको रेजिस्टेंस उसका बढ़ाना पड़ेगा. अब रेजिस्टेंस ऑफ फायर की फॉर्मूला क्या है, सो R इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू L बाय A. तो अगर हम लेंथ उसकी हीटिंग एलिमेंट की लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका पावर लेस होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा गर्म पानी बॉईल होने. So that is why option number 2, length of the heating element should be increased, is the correct option for this MCQ. Okay, moving to the next MCQ. Which type of physical quantity is electric current? बहुत easy. Scalar quantity. Option number 1 is the correct option. जिसको नहीं पता क्यों, मतलब ये तो क्यों नहीं पता तुमको, क्यों नहीं पता, पढ़ो explanation. Okay, next. The direction of E into B in an electromagnetic wave. Wait. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वाला तो चैप्टर में, मतलब ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबने की होगी, मतलब थियोरी वाले क्वेश्चन के लिए कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उसमें एक पॉइंट ये है, टेक्स्ट बुक में ये एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, छापेली लाइन है कि द डायरेक्शन ऑफ E into B in an electromagnetic wave is same as the direction of propagation of electromagnetic wave. तो ये तो वो सेम लाइन है, लाइक डिटो, कॉपी पेस्ट, सिर्फ यहाँ पे टुकड़ों में बांट दिया उनको. मतलब मैं ये बोल रही हूँ NCERT प्लीज पढ़ो प्लीज. तो इतना सिंपल लाइक देख कर ही पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो या जिसको स्टिल, वैसे इसमें कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, बट स्टिल जिसको पढ़ना है पढ़ो. मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. Image formed by a plane mirror is always, again a concept based but very easy. अभी प्लेन मिरर से फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन मिरर है, ठीक है. अभी ये वाला थोड़ा छोटू सा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगी तो वो इमेज फॉर्म करेगा उसके पीछे, लाइक और जो इमेज फॉर्म करेगा ना वो अपसाइड ही होगी, अपसाइड डाउन, लाइक अपराइट होगी, सॉरी अपराइट ही होगी, अपसाइड डाउन नहीं होगी. ऑल्सो जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज होगी इमेज की भी,
ठीक है। तो तुम जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ भी सकते हो कि द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बिकॉज द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, दे ओनली अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट, द इमेज इज इरेक्ट, द इमेज इज अपराइट, जैसा मैंने बोला, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट मैंने जैसा बोला। और जो जितना डिस्टेंस होगा मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ही सेम डिस्टेंस होगा इमेज और मिरर के बीच में। सो या ऑप्शन 2 वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following is the correct option about semiconductors in electronic devices? अभी वापस तुम ऑप्शन पढ़ो, क्या है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैव डायरेक्ट बैंड गैप, सो दैट इज नॉट राइट. कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैव एन इनडायरेक्ट बैंड गैप. लाइक दोनों का उल्टा है. एलिमेंटल में होता है इनडायरेक्ट और कंपाउंड में होता है डायरेक्ट, तो दोनों कैंसिल. Extrinsic semiconductors are injected with impurities. No. Doping is done in intrinsic semiconductors, so that is the correct option. क्यों doping क्या है? Adding of small quantities of impurities. तो अगर वो डालेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सट्रिंसिक में, या तो पी टाइप या एन टाइप पढ़ा होगा जिसमें याद आया थोड़ा. एन टाइप में होल्स मिलेंगे, पी टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, याद आया? बस वही है. तो दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. यू कैन इवन सी द एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन विच रीजन डज BJT एक्ट एज ऑफ स्विच इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव और रिवर्स सैचुरेशन. सो ऑप्शन फर्स्ट कट ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन. जैसे कि तुम ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हो कि BJT क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. सो इट ऑपरेट्स इन डिफरेंट रीजन्स बेस्ड ऑन इट्स बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन. अब अगर उसका बेस एमिटर का फंक्शन अगर होगा रिवर्स बायस्ड और बेस कलेक्टर का होगा ऑलमोस्ट जीरो, एंड बेस करंट मतलब जो होगा वो जीरो या तो बहुत कम होगा, तो वो स्विच ऑफ का फंक्शन परफॉर्म, जो हमारा क्वेश्चन है वही. सो इसलिए कट ऑफ रीजन का इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन, बिकॉज सैचुरेशन एक्टिव और रिवर्स में दोनों में फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट इज नॉट रिवर्स बायस्ड junctions. So yeah, this one option 1 is the correct option for this MCQ. Moving to the next one, in microwave receiver, which microwave component provides isolation between antenna and local oscillator but provides connection between antenna and mixture? ये फंक्शन दे दिया ऑलरेडी डायरेक्ट. मतलब आधे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या है, कहाँ से डायरेक्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा. क्यों नहीं समझ रहा, मैं बता रही हूँ. ये एक चैप्टर हुआ करता था कम्युनिकेशन सिस्टम करके, पहले, अभी नहीं है NCERT में, पहले हुआ करता था. वहाँ से ये दोनों क्वेश्चन लाइक 10 और 11 क्वेश्चन उठाए वो चैप्टर में से दोनों. और उसमें ये लाइन है कि डुप्लेक्सर का ये फंक्शन है भाई कि इन माइक्रोवेव रिसीवर इट इज वन ऑफ द माइक्रोवेव कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स द आइसोलेशन बिटवीन एंटीना एंड लोकल ऑसिलेटर बट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन एंटीना एंड मिक्सचर. उसका फंक्शन. सो मतलब ये इसमें दे दिया है, ऐसे लाइन है पूरी, पर आधे अभी हमारा क्या फॉल्ट है? तुम भी यही बोल रहे हो कि हमने तो पढ़ा नहीं, हम क्या करेंगे. तो यहाँ अब पर ये 2023 के पेपर में था. फिर जहाँ तक मैंने पूछा है, एक दो लोगों से मैंने पूछा बीटेक एमटेक वालों को, वो उन लोगों ने बोला 2024 में ऐसा आउट ऑफ चैप्टर लाइक आउट ऑफ सिलेबस के कोई क्वेश्चंस नहीं थे. सो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि ये साल भी ना हो, इसलिए इतना तुम टेंशन मत लो कि व्हाट इफ ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए ये वो. सो चिल रहो, मोस्टली नहीं होगा. आई फील अच्छा ही होगा, ईजी होगा मेरे को लग रहा है, बट ओके जैसा भी होगा. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. तुमको पढ़ना है तो इधर पढ़ लो, पर कुछ काम का नहीं. आई डोंट थिंक कि उसमें सब आएंगे कोई भी लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम और वो सब में से आएंगे. आई डोंट थिंक सो, बट दिया है तो मैंने सिर्फ ले लिया है. बट या सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मतलब प्लीज़ पहले वो जाके तुम फिजिक्स के दूसरे PYQs जाके तुम चेक करो, बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द MCQs कवर्ड है. एंड या केमिस्ट्री और GK रीजनिंग बीटेक एमटेक के भी मैं डाल रही हूँ. मैथ्स के भाई
मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड है पीसीबी, मैं ना मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, तो मेरे को कुछ नहीं पता उसका, ठीक है। तो अगर तुमको चाहिए तो तुम मेरे को या तो मेल करो या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि हमको मैथ्स के पेपर चाहिए, मतलब मैथ्स का पार्ट चाहिए, तो मैं भेज दूँगी। पर वो मेरे को आएगा तो नहीं, तो मैं नहीं करवा सकती मैथ्स। सो या तो वो चाहिए तो मेरे को वो मैसेज करो। और फिज़िक्स को वो जाके देखो, केमिस्ट्री और जीके रीजनिंग के मैं थोड़े दिन में डाल दूँगी। सो इफ़ यू वांट टू see that video also, make sure you have subscribed to my channel और notification bell भी on कर देना। And yeah, see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.